Hello everyone. So now the cat answer keys are revealed and you have calculated your score. And now you are wondering here and there कि यार किस स्कोर पे कितना परसेंटाइल आएगा, कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा. So to answer all those questions and your queries, I have prepared this video. So I'm sure most of the question will be answered and your doubts will be resolved after seeing this particular video. So watch the video till the end. I'm going to discuss everything in detail. So boys and girls, my name is Lokesh Agrawal. I take classes on Unacademy for Quant and LRDI. So you can follow me on Unacademy as well for these kind of videos and all content driven video as well. तो लेट्स द पार्टी स्टार्टेड. यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं. और जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो एस परसेंटाइल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है, दीज आर जस्ट एस्टिमेशन. एज यू नो कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो सारे मीडिया हाउस एग्जिट पोल देते हैं एंड दे एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीट्स रिसीव्ड बाय वेरियस डिफरेंट पार्टीज. ठीक है, तो उसी तरह हम भी बेस्ड ऑन द स्कोर रिसीव्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स डिसाइड्स कि किस स्कोर पे कितना परसेंटाइल आएगा. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू रीच एट द exact score versus percentile, but there definitely can there be variation between actual percentile and our estimate percentile. ठीक है, तो ये ट्रीटेड एज ए एग्जिट पोल. आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आएगा. दिस कैन बी एग्जैक्टली करेक्ट और दिस कैन बी स्लाइटली वेरी देन द एक्चुअल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. ठीक है, तो ये मत बोलना बाद में कि सर आपने तो ये कहा था, हमारा तो इतना है. जैसे मैंने बोला कि ये एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. So in this video, we are going to discuss Z score versus percentile. As I said, this is expected. We'll compare the last year's cutoff and this year's score versus percentile. Number of seats in XLRI, Jamshedpur and Delhi, number of seats has been increased. So what the impact will be on call and the score. And there are plenty of Z colleges which accept the score through Z. So we'll discuss the cutoff percentile of those colleges as well. So this video is going to be very detailed. Watch the video till the end, and if you think that I have given the almost exact information, then you will like and subscribe the channel as well. Like the video, subscribe the channel. So this VALR, if we talk about particular section, VA was on the easier side and RC was on the difficult side. So almost I have taken the cutoff, and this is the maximum cutoff for all the courses. Like जो भी सेक्शन में मैक्सिमम है, अगर बीएम का मैक्सिमम है तो एचआर का मैक्सिमम है. आई हैव टेकन द मैक्सिमम कट ऑफ. डिफरेंट कोर्सेज के अलग अलग होगी एंड वी विल सी द डिटेल आल्सो सेक्शन बाय सेक्शन. ठीक है, तो कट ऑफ ये मैक्सिमम ले रहा हूं मैं, जो भी हर के लिए मैक्सिमम है. तो वीआरसी के आई हैव टेकन अराउंड सेम 9 to 10. डीएम का थोड़ा सा इंक्रीज होगा. लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 5.5 to 6. दिस ईयर आई एम टेकिंग इट 7 to 8. एंड क्वांट एंड डीआई का, बिकॉज दैट +3 मार्क्स गिवन टू ऑल ऑफ देम or all of you, the cutoff is going to be definitely higher than the last year. Overall, I'm expecting around 32 plus, if not 34 plus. So it should be around in the range of 32 plus to get a call from BM, male engineer. So we'll see the cutoff in detail and then you can match with the data. उससे पहले नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं. नंबर ऑफ सीट्स का इंपैक्ट क्या आने वाला है. नंबर ऑफ सीट्स गाइस, लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2022 में तो 180 थी. इस बार 240 सीट है, तो प्लस 60 सीट यहाँ पर बढ़ गई. एचआरएम में उतनी की उतनी सीट है, यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी प्लस 60 सीट इंक्रीज हुई हैं. तो अगर हम टोटल सीट की बात करते हैं, लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 480 सीट्स एंड दिस ईयर देर आर 600 सीट्स. तो टू फिल द 600 सीट्स दे नीड टू सेंड at least 10 to 12 times number of calls. तो आप मान के चलो कि लगभग 6000 से 7000 के आसपास कॉल आने वाली है. और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं इस साल जेट में वो है लगभग 80,000 के आसपास. तो अगर 80,000 में से मेरे को 7,000 कॉल करनी है या 6,000 कॉल करनी है, तो वही मान के चलो कि आपका वही टॉप 90 to 93 परसेंटाइल के आसपास जाना चाहिए. 7-8% बच्चों में उनको वो बच्चे मिल जाएंगे. 6-7 हज़ार बच्चे 10% मान लो तो 90% के आसपास तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉल आएंगी. ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट कॉल से ये एस्टिमेशन है कि लगभग 6-7 हज़ार के आसपास कॉल आनी चाहिए जेड से. इसका फर्क पड़ेगा डेफिनेटली. सीट्स बढ़ गई हैं तो कॉल ज्यादा आएंगी.
अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड आई एम कंपेयरिंग विद द लास्ट ईयर बिकॉज दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज एस्टिमेटेड फॉर दिस ईयर, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो अगर हम एक्चुअल बात करें वर्बल एबिलिटी सेक्शन की लास्ट ईयर, तो 80 परसेंटाइल लास्ट ईयर आया था 8.5 स्कोर पे गाइस वर्बल एबिलिटी में। दिस ईयर बिकॉज ऑलमोस्ट द पेपर ऑन द सिमिलर लाइन एज लास्ट ईयर, एज आई सेड VA वाज इजी एंड RC वाज स्लाइटली डिफिकल्ट देन लास्ट ईयर, तो मैंने कट ऑफ लगभग उतना ही रखा है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 0.5 का मैंने इंक्रीज किया है हर वीक में, क्योंकि VA टाइम कम देता है। तो 80 परसेंटाइल अगर लास्ट टाइम 8.5 पे आया था, दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 9 के आसपास आपका 80 आना चाहिए। 85 लास्ट ईयर 9.5 पे था, इस बार 10 पे आना चाहिए। 90 अगर लास्ट ईयर 10.5 पे था, तो इस बार 11 नंबर के आसपास आपका 90 परसेंटाइल VA में आ जाना चाहिए। 95 13 पे और 97 14 प्लस पे। तो ये हमारा VA का कट ऑफ। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे को लेट्स से HRM का कॉल चाहिए, तो मेरे को कट ऑफ सेक्शन वाइज कितना क्लियर करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आई थिंक यही जाता है। तो यही इसी वजह से मैंने 9 to 10 आपका कट ऑफ लिखा है VA के अंदर। तो 9 9.5 8.5 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा VA का मैक्सिमम। तो 80 परसेंटाइल इज द कट ऑफ जो मैक्सिमम जाता है किसी भी सेक्शन में। तो 9 to 10 अगर आपका है VA में, तो आई थिंक यू शुड गेट ए कॉल बिसाइड्स अदर सेक्शन एज वेल। डिसीजन मेकिंग दिस ईयर गाइज कंपेरेटिवली आई विल से इजी, क्योंकि ऑप्शन उतने क्लोज नहीं थे और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन थे। और जितना मैंने स्कोर देखा है, जितना मेरे पास बच्चों का डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर DM में काफी अच्छा आया है लोगों का, जो लास्ट ईयर नहीं आया था। इस बार 14 16 काफी लोगों का स्कोर आया है। तो इसी वजह से आई हैव इंक्रीज द मार्क्स फ्रॉम द लास्ट ईयर बाय +1। तो VA में मैंने 0.5 इंक्रीज किया है, DM में मैंने +1 इंक्रीज किया। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी तक जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं Z के स्कोर के बेसिस पे, सब ने लास्ट ईयर का डेटा एज इट इज डाल दिया है। दिस इज नॉट लास्ट ईयर का डेटा गाइस। मैं लास्ट ईयर को इस साल के पेपर से कंपेयर कर रहा हूं और एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल कट ऑफ क्या जाएगा। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ नहीं है, लास्ट ईयर कट ऑफ आपके सामने है या स्कोर आपके सामने है। दिस ईयर का आई एम गिविंग द फर्स्ट टाइम, आई डू नॉट थिंक अभी तक किसी ने ये वाला डेटा प्रेजेंट किया है किसी भी वीडियो में, सब कोई लास्ट ईयर का डेटा यूज कर रहा है। तो इस बार हम एक्सपेक्टिंग DM का जो स्कोर जाएगा वो +1 इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर 80 लास्ट टाइम 5.5 पे था, इस बार हम एक्सपेक्टिंग अराउंड 6.5 के आसपास। 85 परसेंटाइल अगर 6.25 पे था, दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 7.25। आई हैव इंक्रीज बाय +1 एज आप देख पा रहे हो। 90 अगर 7.25 पे था, दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 8.5 पे 90 जाना चाहिए। 95 9 पे था, 10.5 पे आई एम एक्सपेक्टिंग 95 एंड 97 प्लस आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 11.5 to 12। तो ये है मेरा DM का कट ऑफ। तो जैसे हमें पता है कि यार मैक्सिमम जो कट ऑफ जाता है अगेन आई थिंक किसी भी सेक्शन में, वो अगेन 80 85 के आसपास ही है। तो अराउंड आप मान के चलो कि 7 मार्क्स अगर आपके DM में है, तो कट ऑफ शुड बी क्लियर। तो DM का कट ऑफ जो मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 7 मार्क्स होना चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स कि आप मेल इंजीनियर हो या फीमेल नॉन इंजीनियर हो, उसके अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हो। लेकिन 7 मार्क्स अगर आपके हैं, तो आई थिंक यू शुड बी ऑन द सेफर साइड फॉर DM। Now let's talk about quant section. Now this was the section जिसने गेम चेंज कर दिया। +3 मार्क्स जो सबको मिले हैं, आई थिंक इट वाज अ गेम चेंजर। और उसकी वजह से आई थिंक क्वांट में लोगों के जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे आए गाइस। पेपर वाज बिकॉज सम सिटर वाज देयर, सम इजी क्वेश्चंस वर देयर टू द पीपल हु हैव नॉट स्टक विद एनी ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज हार्डली 5-6 क्वेश्चंस वर देयर। तो पेपर वाज कंपैरेटिवली इजियर ऑन द लास्ट ईयर साइड आई विल से, बट बिकॉज 2-3 क्वेश्चन जो गलत थे उसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ है। और इसी वजह से हो सकता है कि मार्क्स थोड़े से कम जाए, लेकिन क्योंकि ये +3 सबको मिल गए, इसी वजह से आई हैव इंक्रीज द क्वांट का स्कोर बाय +1.5। तो 0.5 1 एंड 1.5, तो 80 परसेंटाइल जो लगभग 9.5 पे था, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 10.5 to 11। If not 1.5, at least it will increase by 0.1 to 1.5 guys। तो 10.5 11 के आसपास आपका 80 परसेंटाइल बनना चाहिए। 85 प्लस अगर 10.5 पे था, तो इस बार अराउंड 12 या 11.5 to 12 के आसपास बनना चाहिए। 90 परसेंटाइल इस बार अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 12.5 से 13 के बीच में 90 बनेगा इस बार। और कट ऑफ क्योंकि क्वांट का अच्छा ज्यादा है, तो मैंने जैसे बताया था क्वांट का कट ऑफ इस बार मैं एक्सपेक्टिंग अराउंड 11 के आसपास, 11 प्लस 11 11.5 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वांट का कट ऑफ जाना चाहिए।
क्योंकि +3 तो सबको मिले ही मिले हैं। तो अगर आपका क्वांट में 11.5 है, देन यू कैन बी ऑन द सेफर साइड। 95 आई एम एक्सपेक्टिंग 15, एंड अगेन 97 99 का तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो आप इंक्रीज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो 15 पे 95 एंड 16.5 पे 97 प्लस। तो ये मेरा मोटा मोटा अंदाजा है जितने लोग के स्कोर मेरे पास आए हैं। लेकिन मेन जो चीज आप देख रहे हो वो है ओवरऑल। तो ओवरऑल में भी गाइस आई हैव इंक्रीज द कट ऑफ बाय लगभग 1.5 से 2 नंबर के बीच में स्कोर मैंने जो इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें 80 परसेंटाइल लास्ट टाइम 20 पे था, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 22, अगर नहीं भी बोलते हैं तो कम से कम 21.5 प्लस पे आपका 80 परसेंटाइल आना चाहिए। 85 आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 24 के आसपास। ये लास्ट ईयर का एग्जैक्ट है जैसे मैंने बोला। तो अगर लास्ट ईयर 23.25 पे 85 था, तो इस बार 24.5 बिल्कुल सही है। 24.5 पे आई थिंक 85 बनना चाहिए। लास्ट ईयर अगर 25.75 पे 90 था, तो इस बार 27 के आसपास ही आपका 90 बनेगा। 95 अगर 29.5 पे था, तो इस बार 32 31.5 यू कैन एक्सपेक्ट कि 95 बनेगा। और उसके बाद 97 35 एंड 99 40 प्लस बिल्कुल। तो इसी रेंज में आपका 99 और 97 के आसपास स्कोर आना चाहिए। तो ओवरऑल डेफिनेटली दिस ईयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज गाइस। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा जितना एक्सपीरियंस है, जितने हम लोगों से बात करते हैं, उसके बेसिस पे ये एस्टिमेशन हम देते हैं। और चांसेस ये हैं कि ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहने वाला है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो इसके बेसिस पे अभी भी कुछ फॉर्म अवेलेबल हैं, आप उनको भर सकते हो। अगर आपका स्कोर 80 85 की रेंज में आ रहा है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म अभी भी अवेलेबल हैं, मैं आपको उनका भी कट ऑफ बताता हूँ। उससे पहले अगर हम एक्सपेक्ट करें गाइस सेक्शन वाइज, देखो क्योंकि सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, तो मैंने लास्ट ईयर का ही डेटा यूज किया है। कट ऑफ अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो हाईएस्ट अगर हम देखें किसी भी सेक्शन में 80 परसेंटाइल वॉज द मैक्सिमम वीए का। तो जैसे मैंने बोला 80 परसेंटाइल आपका इस बार लगभग 9 मार्क्स के आसपास आ जाना चाहिए वीए में। बी डीएम की अगर हम बात करें तो डीएम वॉज अराउंड 72। तो 72 परसेंटाइल लगभग आपका अराउंड 6.57 के आसपास डीएम में बनता है। 6 पे भी बन सकता है कट ऑफ। एंड क्यूए में अगेन 80। तो क्यूए में अगेन 80 जो मेरा बन रहा है लगभग 10.5 के आसपास बनेगा। क्यूए का 10 मैंने बनाया है 11 के आसपास। तो क्यूए का ऊपर जाएगा क्योंकि डेफिनेटली 3 नंबर मिलने से इसका कट ऑफ डेफिनेटली इज गोइंग टू बी ओवरऑल ऊपर। तो ये है गाइज 9 6.5 टू 7 एंड 10.5 टू 11 के बीच में अगर आपका स्कोर है, देन यू कैन बी ऑन द सेफर साइड। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेल का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर 93 पे, इस बार कैन बी अराउंड 30 31 मार्क्स पे। फीमेल का 90 पे था, अराउंड 27 28 के आसपास। मेल इंजीनियर 29 29.5 30 के आसपास आपका एचआरएम से कॉल आ सकता है अगर आपका सेक्शनल क्लियर है। फीमेल इंजीनियर 27 28। ये आप इंडिविजुअली देख लेना कितने स्कोर पे आई थिंक कट ऑफ क्लियर है। अगर आप इसके ऊपर हो देन डेफिनेटली यू शुड नॉट बी वरी अबाउट। और फीमेल नॉन इंजीनियर का कॉल 25 26 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक्सएलआई कन्वर्ट करना है तो सिर्फ कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिटन का जो वेटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा कॉल आ गया 25 26 पे, कन्वर्ट कर लूंगा, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज जेड का जो स्कोर होता है उसका वेटेज लगभग 50%। 50%। तो जिसका स्कोर अगर 40 प्लस है उसको भी कॉल आया है, और अगर आपका 25 26 पे भी कॉल आया है, तो चांसेस डेफिनेटली विल बी हायर टू दैट पर्सन जिसके मार्क्स ज्यादा हैं। कन्वर्जन के टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, कॉल भले ही आ सकती है, पर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि सीट्स बड़ी हैं तो हो सकता है इससे कम स्कोर पे भी कॉल आ जाए। ये कॉलेजेस हैं गाइस मेन जो जेड का स्कोर लेते हैं। अगर हम इनके कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्सराई जमशेदपुर अगेन 93 प्लस। माइका 80 85 पे कॉल आएगा। तो आप मान के चलो कि 80 85 जो आपका बनेगा या 80 प्लस स्कोर बनेगा लगभग 21 22 के आसपास बनेगा। तो अगर आपका 21 22 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आई थिंक ये सारे जो फॉर्म है वो आपको 80 प्लस वाले फॉर्म भरने चाहिए, और 85 जो बनेगा वो लगभग 24 के आसपास बनेगा। तो 24 प्लस अगर आपका स्कोर है तो 85 के आसपास वाले कॉलेजेस, और अगर आपका 21 22 की रेंज में आ रहा है तो 80 से 85 जिनकी कट ऑफ है वो फॉर्म भर सकते हो। एक्सएम भुवनेश्वर और जो जो सेक्शनल देखते हैं गाइस, क्योंकि ना सेक्शनल ही देखते हैं काफी सारे, जैसे एक्सएम भुवनेश्वर थोड़ा सा सेक्शनल देखेगा,
IMI सेक्शनल देखेगा, ग्रेट लेक्स थोड़ा प्रोफाइल बेस्ड है और वर्केक्स को थोड़ा प्रेफर करता है, तो इसको देख के भरना। IMT गाजियाबाद सेक्शनल नहीं देखेगा, ओवरऑल देखेगा। तापनी मणिपाल भी प्रोफाइल बेस्ड हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये कॉल करेगा CSC 85 पे। तो अगर आपका 21-22 की रेंज में स्कोर है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस कॉलेज। जिम भी कॉल करेगा, जिम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 85 प्लस पे, तो 24-23 के आसपास है, चांस लेना चाहिए। मतलब अगर आपका इसको थोड़ा सा भी इधर उधर है, यू कैन टेक ए चांस। और जिसकी अभी डेट निकल रही है सिर्फ वही फॉर्म फिल करना, अदरवाइज आप जेड का स्कोर आने का भी वेट कर सकते हो, एक्चुअल परसेंटाइल आने दो, अगर डेट अवेलेबल है तो बाद में भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये आप डेट चेक कर लेना कि किस किस की डेट जा रही है, उसके बेसिस पे आप कुछ फॉर्म भरना चाहो भर सकते हो। इरमा 80 प्लस यानी कि 20-21 पे आसपास, केजीएस सोमा अगेन 80-85 प्लस। अब जो मैंने 80-85 लिखा है इसका मतलब है कि 84 पे भी जा सकता है, 82 पे भी जा सकता है। ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि भाई कट ऑफ कितना है, ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा कोई भी इंस्टीट्यूट। तो ये जो हम लिखते हैं ये लास्ट ईयर के बेसिस पे कि भाई 82 वाले को भी कॉल आया था, इस बार 4 का 82 पे भी कॉल आया कैट से। तो अब जो 4 था पहले हम 85 टू 90 बोलते थे, इस बार 82 पे भी कॉल आ गया है। तो ये जो रेंज हम लिखते हैं ये है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कॉल रिसीव्ड जो हुई है बच्चों की। ठीक है, ये डिस्क्लोज नहीं करते कि हमारा कट ऑफ कितना है, तो आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इन द रेंज। तो आपको चांस लेने पड़ेंगे, फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, लेकिन ROI चेक कर लेना कि भैया इसका फीस कितना है, प्लेसमेंट कैसा है, तभी फॉर्म फिल करना। ठीक है, अदरवाइज रैंडम फॉर्म फिल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सेलेक्टिव फॉर्म फिल करो। बिमटेक नोएडा है, लीवा चेन्नई है, विलिंकर है, IFM भोपाल है, LBS है, एक्सा एमी है, जक्सोम मुंबई है, बिमत्रिची, IFMR चेन्नई, ये सारे कॉलेज अगर आप 21-22 की रेंज में भी हो तो भी आप इन सबके फॉर्म फिल कर सकते हो। चांस लेना पड़ेगा आपको अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैं फिर से बोलूंगा बेस्ड ऑन योर स्कोर, अगर आपका 20-21 के ऊपर है स्कोर देन डेफिनेटली यू कैन फिल 5-6 फॉर्म्स मोर एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का नहीं पता होता यार। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर देंगे या सीमेंट दे देंगे, मेरे हिसाब से आप एक बार फॉर्म भरो, इंटरव्यू दो, होगा तो बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो इंस्टीट्यूट में। और अगर नहीं होता है देन डेफिनेटली यू विल गेट सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ईयर का वेट मत करो। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड गुड लक। आई एम श्योर आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरी है यू कैन राइट इट इन द कमेंट। एज आई सेड माय नेम इज लोकेश, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, और मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं कैट 23 के भी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।